C49 نیوز کے ساتھ میں ہوں لائبہ شیخ اور میں ہوں نفیسہ راجپوت۔ چلتے ہیں اب تک کی تازہ ترین اپڈیٹس کی طرف۔ خبر شامل کرتے جونی کے سے عباس عمر کی رپورٹ کے مطابق دہشت گردی کے حملے میں شہید ہونے والے پولیس اہلکار حارث سلیم کی نماز جنازہ ان کے آبائی گاؤں جونی کے میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں اہل علاقہ، عزیز و قریب، دوست احباب اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ شہید کی میت جونی کے پہنچنے پر علاقے میں سوگ کی فضا چھا گئی اور نماز جنازہ کے موقع پر ہر آنکھ اشک بار تھی۔ شرکا نے ملک و قوم کے لیے جان قربان کرنے والے بہادر سپوت کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اہل علاقہ نے کہا کہ حارث سلیم نے فرض کی ادائیگی کے دوران اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے بہادری اور حب الوطنی کی مثال قائم کی۔ قوم اپنے شہداء کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ قصور سے الحاج شوکت نقشبندی کی رپورٹ کے مطابق ضلع قصور میں پاکستان کا 79ویں یوم آزادی ملی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ مرکزی تقریب ڈی سی آفس میں ہوئی، جہاں ڈپٹی کمشنر محمد آصف رضا نے پرچم کشائی کی اور پولیس ریسکیو 1122 و سول ڈیفنس کے دستوں نے سلامی پیش کی۔ جشن آزادی ریلی، سائیکل ریس، شجرکاری اور مختلف مقامات پر کیک کاٹنے کی تقریبات بھی منعقد ہوئیں۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ آزادی بزرگوں کی لازوال قربانیوں کا ثمر ہے۔ ہمیں اتحاد، ایمان اور نظم و ضبط کے ساتھ اصولوں پر عمل کرتے ہوئے پاکستان کی ترقی و خوشحالی میں کردار ادا کرنا چاہیے۔ حافظ رضوان کمبو کی رپورٹ کے مطابق حبیب آباد میں بھی جشن آزادی ملی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ موٹر وے پولیس بیٹ 14 اور گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول میں پرچم کشائی، کیک کاٹے اور فلیگ مارچ کا اہتمام کیا گیا۔ ڈی ایس پی موٹر وے ایوب لودھی کی قیادت میں روڈ سیفٹی واک بھی ہوئی۔ شہریوں میں قومی پرچم اور تحائف تقسیم کیے گئے، جبکہ محفوظ ڈرائیونگ سے متعلق آگاہی دی گئی۔ مظفر گڑھ سے علی حمزہ کی رپورٹ کے مطابق گورنمنٹ ووکیشنل ٹریننگ انسٹی ٹیوٹ کالج برائے خواتین میں جشن آزادی اور باہمی دفاعی معاہدے کے حوالے سے خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا، جبکہ پروگرام میں پرنسپل مس کنول وحید کی زیر نگرانی منعقد ہوا۔ کالج کی عمارت کو خوبصورت لائٹنگ سے سجایا گیا اور مختلف اشیاء کے اسٹالز بھی لگائے گئے۔ طالبات نے ملی نغمے اور مختلف پروگرام پیش کر کے وطن سے محبت کا اظہار کیا۔ دیا فاؤنڈیشن کی جانب سے طلبات میں وظائف بھی تقسیم کیے گئے۔ تقریب کے اختتام پر پاکستان کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی گئی، جبکہ شرکا نے پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے بھی لگائے۔ پاک پتن سے ہمارے نمائندے عباس حسین بھٹی کی رپورٹ کے مطابق جشن آزادی کے موقع پر جیل اسران کے لیے ڈسٹرکٹ جیل انتظامیہ کی جانب سے رنگا رنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ جشن آزادی کے موقع پر سپرنٹینڈنٹ جیل حسن نواز کاٹھیا کی جانب سے ڈسٹرکٹ جیل بند اسیران کو جشن آزادی کی خوشیوں میں شامل کرتے پروقار تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ قیدیوں نے جوش و جذبے سے ملی نغمے گائے اور قومی ترانے بجائے گئے۔ تقریب میں ضلعی انتظامیہ کی جانب سے مٹھائیاں اور تحائف تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جاوید اقبال چھدر اور ڈپٹی کمشنر آصف رضا نے تقریب سے خطاب کیا کہ آخر میں ملک کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کروائی گئی۔ لاہور سے بیورو چیف حافظ قاسم کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے 79ویں یوم آزادی کے موقع پر اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے پوری قوم کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ آزادی عظیم قربانیوں کا ثمر ہے، اس کی حفاظت اور قدر کرنا ہم سب کی قومی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ 14 اگست آزادی کی قدر، قومی یکجہتی اور ذمہ داریوں کی تجدید کا دن ہے۔ پاکستان کے دفاع اور سلامتی کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء پوری قوم کا فخر ہیں، جبکہ بھارتی جارحیت کے مقابلے میں فوج پاکستان کی جرأت، پیشہ ورانہ صلاحیت اور بہادری قابل تحسین ہے۔ ملک محمد احمد خان نے کہا کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی سفارت کامیابیاں اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان کی دفاعی صلاحیت قابل فخر ہے۔ مکہ مکرمہ میں پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان مشترکہ دفاعی معاہدہ باہمی اعتماد، دفاعی تعاون امت مسلمہ کے اتحاد کی اہم علامت ہے۔ انہوں نے کہا کہ قومی یکجہتی، آئین و قانون کی بالادستی اور اجتماعی ذمہ داری کے ذریعے پاکستان کو مضبوط اور روشن مستقبل دیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ترقی، خوشحالی اور ہر میدان میں کامیابی عطا فرمائے۔
खबर शामिल करते हैं कुड़ियां से मक्का मुकरमा मुआहिदा और जश्न आज़ादी की तकरीब। कुड़ियां कलमा चौक में मक्का मुकरमा मुआहिदा और जश्न आज़ादी की खुशी में केक काटा गया और मुल्क की सलामती के लिए दुआएं की गई। तकरीब में वफाकी वज़ीर मुमलिकत के फर्जंद मलक मज़र रशीद खान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में दीगर मोअज़्ज़ीन भी महर असगर चेयरमैन बिरोन खुड़ियां, चौधरी हारून इस्माइल, जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून खुड़ियां, इमरान तूर उर्फ कालू बोस समेत खुड़ियां की मोअज़्ज़िज़ शख्सियात की कसीर तादाद में शिरकत। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए मलक मज़र रशीद खान का कहना था कि मक्का मुकरमा में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान दफाई ताउन का मुआहिदा मुस्लिम उम्मा की बामी इत्तेहाद, यकजहती और इज्तिमाई सलामती की जानिब एक अहम कदम है। ये मुआहिदा इस अज़म की अलामत है कि ब्रादर इस्लामी ममालिक अमन, इस्तेहकाम और बाहमी ताउन के लिए एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। इस जज्बा इत्तेहाद को हम अपने जश्न आज़ादी पाकिस्तान के मौका पर भी याद करते हैं। 14 अगस्त 1947 हमारी कौमी तारीख का वो अजीम दिन है जब कुर्बानी और जदोजहद के नतीजे में पाकिस्तान एक आज़ाद रियासत के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभरा। आज जश्न आज़ादी का तकाजा है कि हम आज़ादी की नेमत पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, अपने वतन की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए मुत्तहिद रहे और पाकिस्तान को एक मजबूत, पुरअमन और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने में अपना किरदार अदा करें। कोर्ट रज़ा किचन से मोहम्मद अब्बास उमर की रिपोर्ट के मुताबिक मरकजी अंजुमन ताजवान की जानिब से यौम आज़ादी के मौका पर केक काटने की एक पुरवकार और खूबसूरत तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें वफाकी वज़ीर मुमलिकत मलक रशीद अहमद खान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में मलक मज़र रशीद खान, मलक खालिद उमर खान, चौधरी मोहम्मद अली, चौधरी इलियास संधू, चेयरमैन प्रोफेसर मेहरदीन मता, तहसील सदर राउफ नवाब चौधरी, सरदार हारिस टोगर समेत ताजर बरादरी, सियासी व समाजी शख्सियात और मोअज़्ज़ीन इलाका ने भरपूर शिरकत की। इस मौका पर पाकिस्तान की आज़ादी की खुशी में केक काटा गया। वतन अजीज की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गई। वफाकी वज़ीर मुमलिकत मलक रशीद अहमद खान ने अंजुमन ताजवान और तमाम शुरका को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि पाकिस्तान हमारी पहचान और हमारे लिए अल्लाह ताला की अजीम नेमत है। हमें इसकी तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुत्तहिद होकर अपना किरदार अदा करना चाहिए। लाहौर से डिवीजन ब्यूरो चीफ शकील अशोक गुजर की रिपोर्ट के मुताबिक खोखर पैलेस में यौम आज़ादी की शानदार तकरीब। MN मलक सैफ मुल्क खोखर ने परचम कुशाई की और केक काटा। यौम आज़ादी पाकिस्तान की पुरमसरत और तारीखी मौका पर खोखर पैलेस में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौका के दौरान मेंबर कौमी असम्बली MN मलक सैफ मुल्क खोखर ने सबसे लाली परचम लहराया और मुल्क की तरक्की, सलामती, इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ की। परचम कुशाई की शानदार और वलवला अंगेज तकरीब के बाद MN मलक सैफ मुल्क खोखर ने तकरीब में शरीक खवातीन के हमरा जश्न आज़ादी का केक काटा। इस मौका पर तमाम शुरका का जोशो खरोश दीदनी और फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। लाहौर से डिवीजन ब्यूरो चीफ शकील अशोक गुजर की रिपोर्ट के मुताबिक नसीराबाद में यौम आज़ादी पाकिस्तान के मौका पर एक पुरवकार और शानदार जश्न आज़ादी की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें MN मलक सैफ मुल्क खोखर, MP मलक शहबाज अली खोखर और MP मलक अंस महमूद ने खसूसी शिरकत की। मोअज़्ज़िज़ मेहमानों की आमद पर अहले इलाका और मुंतज़मीन की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। तकरीब के दौरान कौमी परचम सरबुलंद किया गया और पाकिस्तान की आज़ादी की खुशी में केक भी काटा गया। इस मौका पर शुरका ने सबसे लाली परचम लहराते हुए कौमी यकजहती, हुब्बुल वतन और पाकिस्तान से अपनी वालहाना मोहब्बत का इजहार किया। तकरीब से खिताब करते हुए मोअज़्ज़िज़ शख्सियात ने कहा कि 14 अगस्त हमारी कौमी तारीख का एक अजीम दिन है। ये दिन हमें उन लाखों मुसलमानों की कुर्बानियों की याद दिलाता है जिन्होंने एक आज़ाद वतन के असूल के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान हमारे बुजुर्गों की जद्दोजहद और शोधा की कुर्बानियों का समर है, इसलिए हमें इसकी तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। इस मौका पर इस अज़म का इज़हार किया गया कि पाकिस्तान को मजबूत, खुशहाल और तरक्की याफ्ता बनाने के लिए इत्तेहाद, नज़्म व ज़ब्त, मेहनत और कौमी जज्बे के साथ आगे बढ़ा जाएगा। लाहौर से डिवीजन ब्यूरो चीफ शकील अशोक गुजर की रिपोर्ट के मुताबिक सदर लाहौर व रुकने कौमी असम्बली मलक सैफ मुल्क खोखर ने MP मलक शहबाज अली खोखर के हमरा PHA की जानिब से जश्न आज़ादी के मौका पर जारी शजरकारी मुहिम के सिलसिले में मॉडल टाउन फिरोजपुर रोड पर शहरियों में पौधे तकसीम किए। इस मौका पर उन्होंने कहा कि सरसब्ज़ और साफ सुथरा लाहौर हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। शजरकारी न सिर्फ माहौल को बेहतर बनाती है बल्कि आने वाली नस्लों के लिए एक सेहतमंद और खूबसूरत मुस्तकबिल की जमानत भी है। शहरी इस कौमी मुहिम में भरपूर हिस्सा लें और ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं।
कसूर से हमारे नुमाइंदे शफीक भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक अंजुमन राइयां जिला कसूर के ज़ेरे तमाम योम आज़ादी के सिलसिले में खसूसी इजलास दफ्तर अंजुमन राइयां ज़की अड्डा में मुनक्किद हुआ, जिसमें जिला भर से अराइम बरादरी के माहिदीन और कसीर तादाद में अफराद ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए अंजुमन राइयां के मुख्ती रहनुमाओं ने क़याम पाकिस्तान के लिए अराइम बरादरी की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। मुकर्रिर ने 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के मर्ज़ वजूद में आने की अहमियत उजागर करते हुए कहा कि आज़ादी एक अजीम नेमत है जिसकी कदर उन लोगों से पूछी जाए जो आज भी भारत में जुल्म सितम का सामना कर रहे हैं। मुकर्रिर ने कहा कि हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम एक आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं जहां हर शहरी अपने मजहबी मुआशी फ्लाई फ्राइज आज़ादी के साथ अदा कर सकता है। पाकिस्तान ने हमें आज़ादाना ज़िंदगी गुजारने के साथ साथ अपने मजहबी और समाजी मामलात अपनी मर्जी के मुताबिक अंजाम देने का हक दिया है। यौम आज़ादी के मौका पर दफ़ाए पाकिस्तान का जिक्र करते हुए मुकर्रिर ने पाक फौज को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि पाक फौज की कुर्बानी और दफ़ाई खिदमात की बदौलत मुल्क की सरहदें महफूज हैं और कौम आज़ाद और पुरअमन माहौल में ज़िंदगी बसर कर रही है। मुकर्रिर ने इस अज़म का इज़हार किया कि मुल्क की तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए हर फर्द को अपना किरदार अदा करना चाहिए और कौमी यकजहती को मज़ीद मजबूत बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। इजलास के इख्तिताम पर कारी अबू बकर ने मुल्क पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम, खुशहाली और तरक्की समेत अंजुमन राइयां के इत्तेहाद व इत्तफाक के लिए खसूसी दुआ कराई। शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों के साथ वतन अजीज से अपनी मोहब्बत और वफादारी का इजहार किया। कसूर से एंकर पर्सन सलीमुल्लाह बाजवा की रिपोर्ट के मुताबिक कसूर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ज़ेरे तमाम योम आज़ादी के मौका पर परचम कुशाई की खसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब चैम्बर हाउस सैफ सिटी कसूर में हुई, जिसमें चैम्बर के ओहदेदारान, अरकान और मोअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। तकरीब के दौरान कौमी परचम लहराया गया और पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम, खुशहाली और तरक्की के लिए खसूसी जज्बात का इजहार किया गया। इस मौका पर सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री काशिफ नईम, सीनियर नायब सदर हाजी मोहम्मद अकरम ज़की और शुरका ने वतनी अजीज के साथ अपनी वालहाना मोहब्बत और कौमी यकजहती के अज़म का अदा किया। कसूर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जानिब से यौम आज़ादी की मुनासबत से मुनक्किदा तकरीब का मकसद कारोबारी बरादरी को कौमी दिन की खुशियों में शरीक करना और मुल्क की मुआशी तरक्की में ताजिर बरादरी के किरदार को उजागर करना था। तकरीब के बाद मोअज़्ज़िज़ अरकान के लिए खसूसी नाश्ते का भी एहतमाम किया गया। चैम्बर इंतजामिया ने अरकान पर जोर दिया कि वो पाकिस्तान की तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करें। यौम आज़ादी के मौका पर कसूर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जानिब से मुनक्किदा तकरीब में कौमी जज्बा नुमाया रहा और शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों के साथ वतन अजीज से मोहब्बत का इजहार किया। अब तक इतना ही। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।